ओके बेटा, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, वी आर स्टार्टिंग विद द टॉपिक डिफरेंशिएशन। देखो कैसे इसको डिफाइन करेंगे। A cell is said to be differentiated when, देखो किसी भी सेल को हम डिफरेंशिएटेड सेल कब कहते हैं? When it slows down or stop, है ना? आप और जैसे दोनों जाने हैं अपनी बुक पे लिख लेंगे। Stop the meristematic activities and becomes mature to perform a specific function। ठीक है बेटे, देखो किसी भी सेल को डिफरेंशिएटेड सेल कब कहेंगे? जब वो कहते हैं कि द मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटीज दे स्टॉप इन दैट सेल, और यू कैन से द मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटीज दे स्लोस डाउन फॉर सम टाइम and later the cell becomes a mature cell and it start performing the specific function. If you have to give the example, देखो अगर हम इनका एग्जांपल लें and the example is formation of, that is also given in your book, formation of auxiliary elements from primary meristematic tissues। ठीक है, अगर मैंने वर्ड यूज किया प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, इसका मतलब प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या हो सकती है? टिश्यू कैपिटल मेरिस्टेम्स हो सकते हैं। जाइलरी एलिमेंट्स का मतलब क्या है? फॉर्मेशन ऑफ ट्रेकिएज, फॉर्मेशन ऑफ वेसल्स। ठीक है बेटे, तो कहते हैं कि अगर जाइलम बननी है, जिसे हम कहते हैं कि ऐसे जाइलम जिसने क्या करना है, कंडक्शन करना है वाटर एंड मिनरल्स का, तो दैट जाइलम इट इज, so that xylem is formed from the primary meristematic tissues. So you know that these primary meristematic tissues, they are the meristematic one, but when they form the xylary elements, these xylary elements, they are not showing any of the meristematic activities, they are the differentiated cells। ठीक है, so this phenomenon is known as differentiation। okay, all of you have written it on your book। जो स्टूडेंट्स घर पे हैं वो भी अपनी बुक में लिख लें इसको। Yes, but Jasmine, blackboard is visible? Yes, ma'am. Okay, write down. Be fast. Second one is de-differentiation। ठीक है, these definitions are not given in the book। मैंने अपने आप से बनाई है ताकि आपको इजीली समझ आ सके, बुक की लैंग्वेज में ही है। De-differentiation means the differentiated cell, the differentiated cell when again start showing meristematic activities, when there is a demand in plant body। See the definition setting on de-differentiation means those cells which becomes the differentiated cells, but if there is any demand in the plant body, for example there should be regeneration of certain cells or tissues or some new cells have to be formed। ठीक है, तो those differentiated cells which lose their meristematic activities but demand is there, they start showing the meristematic activities again। ठीक है बेटे, तो अब देखो कहते हैं कि अगर हमें इसका एग्जांपल देना है कि वांट टू गिव द एग्जांपल ऑफ द de-differentiated cells। So example of de-differentiated cells is formation of vascular and cork cambium
पैरेन्काइमा सेल्स। ठीक है बेटे, पैरेन्काइमा सेल्स देंगे। दीस पैरेन्काइमा सेल्स दे आर द डिफरेंशिएटेड सेल्स, क्योंकि आपको पता है वी हैव टू टाइप ऑफ टिश्यूज होते हैं हमारे पास। ठीक है बेटे, सिंपल टिश्यूज एंड परमानेंट टिश्यू हमने पढ़े हुए हैं 9th क्लास में। तो पैरेन्काइमा सेल्स से अगर हम उन्हें परमानेंट टिश्यूज कहते हैं, मतलब दीस आर द डिफरेंशिएटेड टिश्यूज। और अगर वो कहते हैं कि डिफरेंशिएटेड पैरेन्काइमा सेल्स जो है उसमें से फिर क्या बनने लग जाते हैं, वैस्कुलर कैम्बियम बनने लग जाता है, या फिर देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कॉर्क कैम्बियम। देन दिस इज द एग्जांपल ऑफ डी डिफरेंशिएशन, क्योंकि पैरेन्काइमा सेल्स डिफरेंशिएटेड थे और अब डिमांड है कि उनसे क्या बनना है, वैस्कुलर या कॉर्क कैम्बियम बनना है। तो वो पैरेन्काइमा सेल डिफरेंशिएशन के फेज से दे कम्स आउट एंड दे स्टार्ट शोइंग द मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटीज। Okay, but what is the function of vascular cambium? So always remember the function of vascular cambium is secondary growth, that is wood formation. And what is the function of cork cambium? The function of cork cambium is the formation of the cork. Okay, what is cork? It is the outermost crushed epidermis layer that is present over the stem when there is overactivity of the vascular cambium. ठीक है, फिर से सुनेंगे। जब vascular cambium जो है वो अपनी ओवर एक्टिविटी शो करने लग जाता है और वो प्रेशर एक्सर्ट करता है on the different layers that are present in a plant part, तो उसको ओवरकम करने के लिए there is one cambium gets active in the cortical region. ठीक है, one cambium it gets active in the cortical region, or you can say in the cortex part, and that cambium is known as a cork cambium. So it is involved in the formation of cork. ओके बेटा, इट इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉर्क। अगर हमने वन लाइन में बताना है कि कॉर्क क्या होता है, तो इट इज द क्रश्ड एपिडर्मिस लेयर। ठीक है, तो एपिडर्मिस कैसे क्रश हो गई है, तो कहते हैं कि वैस्कुलर कैम्बियम जो है उसकी ओवर एक्टिविटी की वजह से जितनी भी लेयर्स होती है, ठीक है, जो जाइलम के बाद वाली लेयर्स है उन पर प्रेशर एक्सर्ट होता है, और प्रेशर एक्सर्ट होने के बाद वो लेयर्स जो है वो बाहर की तरफ जो है मूव करने लगती है, और सबसे लास्ट में एपिडर्मिस लेयर होती है और वो क्या हो जाती है, क्रश हो जाती है, और उसे कॉर्क। ठीक है बेटे, व्हाट इज रीडिफरेंशिएट? अब वो कहते हैं कि दोस सेल्स व्हिच आर डिफरेंशिएटेड सेल्स। ठीक है, डिफरेंशिएटेड सेल्स कौन से थे, जिन्होंने फिर से मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी शो कर दी थी। So those cells which are dedifferentiated cells, they again lose their meristematic activities. ठीक है, पहले तो उन्होंने क्या किया था, पहले वो डिफरेंशिएटेड थे, डिफरेंशिएटेड से वो मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी शो करने लग गए थे, तब हमने उनको डिफरेंशिएटेड कहा था। और वो कहते हैं कि they have fulfilled द डिमांड, जो भी डिमांड थी उसको उन्होंने फुलफिल कर लिया। अब वो और कोई डिमांड नहीं है प्लांट के अंदर, तो दे लूज देयर मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटीज अगेन। ठीक है, फिर से एक बार वो अपनी मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटीज जो है उसको बंद कर देंगे और क्या कर जाएंगे, फिर से वो कौन से फेज में एंटर कर जाएंगे, डिफरेंशिएटेड फेज में एंटर कर जाएंगे, डिफरेंशिएटेड। ओके बेटा, can any student give me the example of redifferentiation? हाँ जी, redifferentiation। सोचिए कोई ऐसे सेल्स जो क्या बन गए हैं, जो कि डिफरेंशिएटेड फेज में होंगे, और फिर से वो मान लीजिए redifferentiated फेज में आ गए हैं, तो व्हाट इज द एग्जांपल? ठीक है बेटा, अगर माइंड में आ रहा है तो बोलिए, नहीं आ रहा तो सुनिए अपने ध्यान से। इफ यू सेकेंडरी जाइलम वुड फॉर्मेशन, यस। और कॉर्क, कॉर्क अगर बन गया तो वो भी उसका एग्जांपल है। कॉर्क कैम्बियम से कॉर्क बना है ना, उसी तरह से वैस्कुलर कैम्बियम से वुड बनी है। ठीक है बेटे, तो उसमें लिख लेंगे, तो एग्जांपल इज सेकेंडरी ग्रोथ और वुड फॉर्मेशन इन डाइकॉट प्लांट्स। वैसे तो मोनोकॉट में भी होती है और उतनी ज्यादा नहीं होती, इसलिए हम डाइकॉट प्लांट्स से रिलेटेड मानते हैं। एंड फॉर्मेशन ऑफ कॉर्क। ठीक है बेटे, फॉर्मेशन ऑफ कॉर्क इन द स्टेम ऑफ द डाइकॉट प्लांट। ठीक, अब याद रखिए कि वुड का फॉर्मेशन जो है उसके लिए कौन से सेल्स जो है वो डिफरेंशिएटेड करना पड़ा था,
पैरेंकाइमा सेल्स को डिफरेंशिएटेड करना पड़ा था, उन्होंने क्या बनाया था, वैस्कुलर कैम्बियम बनाया था। अब वैस्कुलर कैम्बियम तो मेरिस्टेमेटिक है, और जब उसने क्या किया, वुड का फॉर्मेशन कर दिया, तो वैस्कुलर कैम्बियम जो है उसकी मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी जब उसने वुड बना दी खत्म होगी, तो उसका जो प्रोडक्ट है वुड, वो किसका एग्जांपल है, रीडिफरेंशिएटेड सेल्स का एग्जांपल। उसी तरह से कॉर्क कैम्बियम ने क्या बनाया, कॉर्क बनाया, और जब कॉर्क बन गया देन इट इज एग्जांपल ऑफ रीडिफरेंशिएटेड सेल्स। ठीक है बेटे, सारी चीजें क्लियर है अच्छे से? Yes, those students who are sitting at their home. Any question? Everything is clear? Shall we proceed? Yes, ma'am. Okay, साथ साथ पढ़ते रहेंगे। ठीक है बेटा, now we are starting with the next topic and that is development. देखो डेवलपमेंट जो है उसकी जब भी हम बात करते हैं we are concerned with two terms. On that day I have told you. तो कहते हैं कि हर एक जो प्लांट है या प्लांट पार्ट है वो कौन सी स्टेज शो करता है, डेवलपमेंट की स्टेज शो करता है। और ऑलवेज जब भी प्लांट जो है वो डेवलपमेंट करता है क्या शो करेगा, ग्रोथ शो करेगा। इट शोज ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। ऑलराइट, ठीक बेटे। तो सबसे पहले कहते हैं किसी भी प्लांट जो है उसका स्टार्टिंग कहां से होती है, किसी भी प्लांट पार्ट की, वो जाइगोट की फॉर्म में होता है। ओके, और जाइगोट जो है उसमें क्या है, काफी सारे सेल्स हैं, और जब ये सेल्स जो है वो क्या करने लगते हैं, सेल डिवीजन करने लग जाते हैं। ओके बेटे, तो कैसे सेल्स बन जाते हैं, ये कैसे सेल्स बन जाते हैं, दे बिकम द मेरिस्टेमेटिक सेल्स। ठीक बेटे, अब वो कहते हैं कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो हैं जब वो अपनी एक्टिविटी शो करने लगेंगे तो फिर उसकी वजह से ग्रोथ होगी प्लांट के अंदर। तो सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म जो है किसी भी सेल का इंक्रीज होगा, इसलिए ग्रोथ कैसे होगी, इट इज अ प्लाज्मेटिक ग्रोथ। ठीक है बेटे, सेल जो है उसका साइज बढ़ने लगी है, उसके अंदर प्रोटोप्लाज्म की ग्रोथ होने लगी है। अब वो कहते हैं कि प्रोटोप्लाज्म की ग्रोथ हो गई है, प्लाज्मेटिक ग्रोथ हो गई है, देन आफ्टर दैट कौन सी ग्रोथ होनी है, एक्सटेंशन ग्रोथ। ठीक है, वही सेल जिनका साइज बढ़ गया था अब वो सेल जो है वो काफी ज्यादा इलॉन्गेट होने लगे हैं, दे बिकम द इलॉन्गेटेड सेल्स। तो प्लाज्मेटिक ग्रोथ के बाद एक्सटेंशन ग्रोथ होती है, और एक्सटेंशन ग्रोथ जो है उसके बाद कहते हैं कि सेल्स कैसे सेल्स बनते जाते हैं, दे बिकम द मैच्योरेटेड सेल्स, वो मैच्योर होते जाते हैं। ठीक है, पर कैसे मैच्योर होंगे, जब सेल्स में हम अंदर क्या होने लग जाएगा, डिफरेंशिएशन होने लग जाएगा, the cells they are not performing any of the meristematic activities, instead of that they are start performing some specific function and they become the maturated cells. अब वो कहता है कि these maturated cells, ये जो matured cells, ठीक है बेटे, काफी टाइम तक तो वो अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते रहते हैं, बट विद द टाइम पीरियड these cells they become weak and they later become the senescent। जब सेनेसेंस की स्टेज में आ जाती है तो मैच्योरेशन स्टेज के बाद अगली स्टेज कौन सी है, सेनेसेंस की स्टेज। ठीक है, सेनेसेंस को आप कह सकते हैं इट इज द स्टेज दैट इज द स्टेज बिफोर डेथ। ठीक है, तो डेथ के बाद जो है, जब सेल्स काफी ज्यादा वीक हो गए, दे स्लो डाउन देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज एंड लेटर दे शो देयर डेथ एंड दीस आर नॉट डेड सेल्स। ओके बेटा, तो फिर से सुनेंगे, देखो जाइगोट से किसी भी प्लांट का लाइफ साइकिल स्टार्ट हुआ, then inside the zygote so many cells are present, some of the cells they start showing cytomerism, so they are called as the meristematic cells. These meristematic cells they show their meristematic activities and form different type of growth. The first type of growth is the plasmatic growth and that is the growth of the protoplasm. It is the growth of the protoplasm that is increase in the size of the cell. After plasmatic growth, extension growth is there. Here the different plant parts they keeps on extending. अगर रूट है, शूट है तो सारी उनकी लेंथ जो है वो बढ़ती जाएगी, अगर लीफ है तो सरफेस एरिया बढ़ता जाएगा। ठीक है, फिर आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड these cells they become the differentiated cells, they are not showing any of the meristematic activities and they become the mature cells by the phenomenon that is known as
differentiation, and after entering into the mature phase and remain in that phase for some time. Later, the metabolic activities it keeps on reducing in the cells, and these saturated cells they enter into the stage of senescence. And senescence stage is the stage that is prior to death. ठीक है बेटे? When the metabolic activities जो बिल्कुल वो क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, negligible रहेगी, तो particular cell कौन से cell बन जाएंगी? Dead cell बन जाएंगी. So this is all about the development in a plant species. This is clear to all of you? Yes, students. Speak up. Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्लियर है? चलिए अब हम अगले टॉपिक पे हैं. देखो प्लास्टिसिटी वी हैव डिस्कस. ठीक है, प्लास्टिसिटी हमने डिस्कस कर लिया हुआ है. एक बार फिर से बताती हूँ that different plants they are growing in different kind of habitat. So what kind of habitat the plant species they are growing? Their vegetative structures they develop according to that. ठीक है, फिर से सुनेंगे. Different plants they are growing in different kind of habitats, and whatever be their habitat, whether it is a terrestrial habitat or an aquatic habitat, ठीक है, different kind of structures they develop in their vegetative parts. मतलब vegetative parts जो है चाहे वो किसी की लीफ है या कोई और वेजिटेटिव पार्ट्स हैं, उनके स्ट्रक्चर जो है वो वेरी करते हैं, उनकी शेप वेरी करती है, साइज वेरी करता है. ठीक, तो इसको प्लास्टिसिटी कहते हैं. एंड वन एग्जांपल ऑफ प्लास्टिसिटी इज हेट्रोफाइली. ठीक है, हेट्रोफाइली इन द लीव्स, हेट्रोफाइली इन द लीव्स ऑफ कोरिएंडर, इन द लीव्स ऑफ बटरकप और लार्कस्पर्क भी हम उसे कहते हैं. ठीक है, कॉटन के भी लीव्स जो जुवेनाइल फेज में है वो डिफरेंट होते हैं और जो मैच्योर फेज है उसमें वो डिफरेंट. ठीक है बेटे, उसी तरह से अगर आपके घर में किचन गार्डन है तो सी द शेप ऑफ द लीव्स ऑफ कोरिएंडर, दैट इज धनिया इन द जुवेनाइल स्टेज एंड एट द मैच्योर स्टेज. तो जुवेनाइल स्टेज पे दे हैव द नैरो लैमिना एंड एट द मैच्योर स्टेज देयर लैमिना इज ब्रॉड. So this phenomena is known as plasticity. Okay, beta, I am on page number 247 and we are starting with the next topic. Before this, one paragraph is given. Okay, so here what he is written, the process of growth and development is controlled by some factors, and these factors they are broadly categorized into two types. ठीक है, growth और development की जो stages हैं जितनी भी plants हैं के अंदर, it is controlled by two factors and we have broadly categorized them into intrinsic factors. They may be intrinsic factors which control growth and development in a plant species, or they may be the intrinsic or extrinsic factors. ठीक है बेटे, तो किसी भी प्लांट स्पीशीज में ग्रोथ और डेवलपमेंट का जो कंसेप्ट है it depends upon two factors, intrinsic factors, those factors which are related with the internal environment of the plant or plant species. Okay, those factors which are related with the internal environment of the plant species, and those factors which are actually the physical factors present in their habitat. Okay, present in the habitat of the plant species. किसी भी plant species के habitat में present जो physical factors हैं. ठीक है, सोचिए कौन से हो सकते हैं फिजिकल फैक्टर्स, कौन से हो जाएंगे? फॉर एग्जांपल इट मे बी टेम्परेचर, इट मे बी द सॉइल जो उस हैबिटेट में प्रेजेंट है वो भी तो डिसाइड करेगी ना, या फिर सनलाइट हो सकती है, कितनी सनलाइट उनको अवेलेबल है. ठीक है, वाटर कितना उनको मिलता है, एंड और क्या हो सकती है, ह्यूमिडिटी भी हो सकती है, वो सेकेंडरी में आ जाते हैं, हमने मेन नहीं है तभी. ठीक है बेटे, न्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कितने हैं उस हैबिटेट में और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. एंड व्हाट अबाउट दीस इंट्रिंसिक फैक्टर्स? तो सी दीस इंट्रिंसिक फैक्टर्स दे आर अगेन डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज. दीस कैन बी द जेनेटिक फैक्टर्स जो किसी भी प्लांट में पहले से ही प्रेजेंट है एंड कंट्रोल्ड बाय द जीन्स. ठीक है बेटे, और दीस तो जेनेटिक फैक्टर्स जो है ना उनको वहां पे नाम दिया गया है इंट्रा सेलुलर फैक्टर्स. ठीक है बेटे, तो किसी भी प्लांट स्पीशीज में वो फैक्टर्स जो उनके जीन्स के द्वारा कंट्रोल होते हैं उनको इंट्रासेलुलर फैक्टर या जेनेटिक फैक्टर्स कहते हैं. एंड बिसाइड टू दिस वी हैव द इंटरसेलुलर फैक्टर्स. ठीक है, तो इंटरसेलुलर फैक्टर्स जो है इसमें जनरली फाइटोहार्मोन्स आ जाते हैं. डिफरेंट टाइप ऑफ फाइटोहार्मोन्स आर नेचुरली प्रेजेंट इन द प्लांट स्पीशीज.
अलग अलग तरह के फाइटो हार्मोन्स प्लांट स्पीशीज के अंदर ही सिंथेसाइज होते हैं एंड लेटर दे माइग्रेट टुवर्ड्स डिफरेंट प्लांट पार्ट्स टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस। ठीक है, जैसे देयर इज वन प्लांट हार्मोन एंड इट्स नेम इज ऑक्सिन, दो इट इज सिंथेसाइज इन द रूट्स के अंदर सिंथेसाइज होता है और लेटर ऑन वो जिस टारगेट ऑर्गन की तरफ उन्होंने शिफ्ट करने वहां चले जाते हैं, तो रूट में सिंथेसाइज होता है, शिफ्ट कहाँ पे हो जाता है, शूट में शिफ्ट हो जाता है और शूट की बेंडिंग करता है, ये आपको मालूम है। ओके बेटे, यहाँ तक क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को? इससे सुनेंगे फेसेस ऑफ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ इन प्लांट स्पीशीज is broadly divided or dependent on two type of factors. Number one is intrinsic factors, and always remember intrinsic factor is related with the internal environment of the plant, and they are further divided into two types. These may be intracellular factors or intercellular factors. So intracellular factors are always genetic in nature, and intracellular के बाद इंटरसेलुलर आते हैं, इंटरसेलुलर जो है वो फाइटोहार्मोन्स की एक्टिविटी पे डिपेंडेंट है। ओके बेटे, जबकि एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स जो हैं, दे आर एक्चुअली द फिजिकल फैक्टर्स, दे आर प्रेजेंट इन देयर हैबिटेट, द फिजिकल कंडीशंस, इट मे बी द रेंज ऑफ टेंपरेचर और इट मे बी द सॉइल कंडीशंस, amount of sunlight available, amount of water available, or types of nutrients, whether it may be micronutrients or macronutrients present in the plant species. Okay बेटे, no problem. Intercellular में बेटे वो कहते हैं कि there are different type of chemical substances which are actually the phytohormones and they are synthesized in different parts of the plant. ठीक है, they are synthesized in some specific part of the plant but they are not showing activity in that part. They migrate towards another part where they have to perform the activity. For example, auxin is synthesized in the root apices but later is shifted towards the shoots to perform their activity and it is involved in the bending of the shoots. ठीक, यहाँ तक क्लियर सभी बच्चों को? अगर जल्दी जल्दी हो रहा है तभी बताएंगे बच्चे, थोड़ा ऐसे स्लो हो जाएंगे। Any question is there? Any question? Those students that are at their home. But whenever I ask you that the thing is clear to you, this means you have to speak. ठीक है, if you will not speak तो मैं अपने आप ही समझ लूंगी कि आपको टॉपिक समझ आ गया और मैं अगले टॉपिक पे आ जाऊंगी, फिर दिक्कत आएगी। क्लियर? If you have any question, you will ask your question at the same moment so that there should not be any difficulty. वही पूछना है, फिर गड़बड़ हो जाने नहीं तो। Okay बेटे, now we are, I'm starting with the next topic and my next topic is plant growth regulators. Okay, plant growth regulators as the name itself indicates, these are the special type of chemicals which regulate the process of growth in plants. So plant growth regulators, what kind of chemicals these are? So here we are discussing their characteristics. So plant growth regulators, in short they are known as PGRs. Okay बेटे, so first characteristic of these PGRs are, these are the simple small molecules with diverse composition. ठीक है, ये कहते हैं कि वो बहुत ही सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, पर उनका कॉम्पोजिशन जो है केमिकल्स का उनके अंदर वेरी करता है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल दे मे बी द डेरिवेटिव्स ऑफ एंडोल। ठीक है, एंडोल जो है ये एक टाइप ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, तो ये एंडोल के डेरिवेटिव्स हो सकते हैं। तो एग्जांपल के अंदर क्या आ जाएगा? फॉर एग्जांपल वी हैव ऑक्सेंस। ठीक है बेटे, ऑक्सेंस के लिए हम एक बार वर्ड यूज करते हैं, आपको याद है IEE, दैट इज एंडोल एसिटिक एसिड, ऑक्सेंस और एंडोल एसिटिक एसिड। ठीक है बेटे, उसके अलावा वो कहते हैं कि वो टर्पेन्स भी हो सकते हैं। देखो ये टर्म हमने पहले ही सुनी हुई, टर्पेन्स, एंडोल्स। ठीक है, जब हमने चैप्टर पढ़ा था, वी हैव लर्नड द चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स। आई हैव टोल्ड यू टू टाइप ऑफ मेटाबोलाइट्स आर देयर. Primary metabolites, which are actually the product of photosynthesis, but in addition to that, some of the other metabolic products, they are produced in plants, but they are not the food material. It is actually performing some other kind of function related with defense.
ठीक है, एंड दे आर नोन एज द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। ओके बेटे, उसी तरह के टर्पीन्स जो होते हैं ना, दे आर आल्सो द टाइप ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो देखो अगर वो कहता है कि वो टर्पीन्स के डेरिवेटिव्स हैं, बुक के अंदर अंडरलाइन कर लीजिए, मैंने अपनी बुक में किया हुआ है। ठीक है, अगर वो एंडोल कंपाउंड है तो दे में भी IAA एंडोल एसिटिक एसिड। ठीक, अगर वो टर्पीन्स हैं तो टर्पीन्स के अंदर हमारे पास कौन सा आ जाएगा, जिबरेलिन्स आ जाएंगे। ठीक है बेटे, जिबरेलिन्स आ जाएंगे, ये भी ग्रुप पर फोकस होते हैं। इसके अलावा दे में भी द डेरिवेटिव्स ऑफ एडेनाइन। ठीक है, सोचो एडेनाइन वर्ड हमने कहां पे सुना है, डीएनए के अंदर सुना है ना ये। ठीक है, तो एडेनाइन जो है वो उसके डेरिवेटिव्स हैं, इसमें देखो एक एग्जांपल दिया हुआ है। ठीक है, एन फॉस्फोराइल, बनना नहीं है बड़े बड़े नाम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, N6 फॉस्फोराइल अमाइनो पुरीन। ठीक है, आपको याद है कि डीएनए में वी हैव टू टाइप ऑफ कंपोनेंट्स, purines and pyrimidines. They are the derivatives of adenine. So you can give the example N6 fosforyl amino purine. If they are terpenes, they are gibberellins. If they are indole derivatives, they are oxanes. और अगर वो कहता है कि इनका नेचर कैसा है, they are the gaseous type of compounds. So you know that one of the plant hormone which is actually a gas, it is ethylene. ठीक है बेटे, ethylene का फॉर्मूला देखो, कार्बन और कार्बन में डबल बॉन्ड है और हर एक कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच है, 2 हाइड्रोजन अटैच है। अगर मैं इसको बंद कर दूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ ना, C2H4 इथिलीन, इथीन भी कहते हैं इसको, याद है। इसके अलावा देखो एंडोल, टर्पीन्स, एडेनाइन्स हो गए, कौन सा रह गया, वन इज लेफ्ट, दैट इज डेरिवेटिव्स ऑफ कैरोटीनॉइड्स। ठीक है, वेयर यू हैव हर्ड द टर्म कैरोटीनॉइड्स, जब हमने पिगमेंट्स की बात की थी। ठीक है, जब हमने पिगमेंट्स की बात की थी तो आपको बताया था कि बिसाइड क्लोरोफिल वी हैव अदर टाइप ऑफ कंपाउंड्स आल्सो। तो हियर आई हैव रिटन दे मे बी द डेरिवेटिव्स ऑफ कैरोटीनॉइड्स। ये कैरोटीनॉइड्स के डेरिवेटिव्स हो सकते हैं। तो देखो उसके एग्जांपल में हमारे पास क्या आ जाएगा, एब्सिसिक एसिड आ जाती है। ठीक है, जिसको शॉर्ट में हम क्या कहते हैं, एब्सिसिक एसिड व्हिच इज नोन एज ABA, शॉर्ट में हम उसको लिखते हैं ABA, एब्सिसिक एसिड। ठीक है बेटे, एसिड अगर मैं वर्ड यूज कर रही हूँ इसका मतलब नेचर कैसा है उसका, एसिडिक नेचर। तो फिर से सुनेंगे कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जो है वो सिंपलेस्ट स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं जिनका केमिकल कंपोजिशन जो है वो वेरी कर सकता है, या तो वो एंडोल के डेरिवेटिव्स हो सकते हैं तो फिर वो ऑक्सीजन है, अगर वो टर्पीन्स हैं तो फिर वो जिबरेलिन्स हैं, अगर वो एडेनाइन के डेरिवेटिव्स हैं। ठीक है बेटे, इसके अंदर देखो एग्जांपल में N6 फॉस्फोराइल अमाइनो पुरीन आ जाएगा, अगर वो गैसियस है तो उसमें इथीलीन आ जाएगा। ठीक है, और इसमें एडेनाइन वाले भी पिनेटेन उसका एग्जांपल होगा जिसको हम साइटोकिन्स कहते हैं, और अगर वो कैरोटीनॉइड्स के डेरिवेटिव्स हैं तो फिर वो ABA या फिर क्या है, एब्सिसिक एसिड। ओके बेटा, दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, नो नीड ऑफ राइटिंग बिकॉज़ एवरीथिंग इज रिटन इन द बुक, so we are not writing it again. Now we on the basis of functions we perform. ठीक है, on the basis of functions we perform. They are divided into two types. इनको हम टू टाइप्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। दे मे बी द प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स, देखो नेम से पता लग रहा है कि प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स हैं तो फिर वो ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, और दे मे बी द प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स, और अगर वो प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स हैं तो फिर वो ग्रोथ को लेकर एक्टिविटीज को रोकते हैं। ओके बेटे, तो देखो प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स हैं, दे परफॉर्म वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज। नंबर 1, सेल एनलार्जमेंट। We know that cell enlargement is related with the growth. ठीक है, फिर सेल एनलार्ज हो सकता है। फिर कहते हैं कि there are different type of vegetative organs they are formed in the plant. It may be root, it may be shoot, it may be leaves. तो हर एक जो पर्टिकुलर वेजिटेटिव ऑर्गन है, चाहे रूट है, शूट है, लीफ है, उसकी शेप और उसके साइज को इंप्रूव करते हैं, जिसको हम कहते हैं पैटर्न फॉर्मेशन। ठीक है, पैटर्न फॉर्मेशन उसको हम कहेंगे।
उसके अलावा देखो किसी भी प्लांट के अंदर अगर फ्लावरिंग हो रही है तो उसको भी इन्होंने क्या करना है, प्रमोट करना है। ठीक है, फ्लावरिंग के बाद आपको पता है अगर फ्लावरिंग होगी तो प्लांट के अंदर क्या होना है, फ्रूट का फॉर्मेशन होना है, तो फ्रूट फॉर्मेशन को भी प्रमोट करेंगे। एंड लास्ट वन, फ्रूट्स भी बन गए, अब क्या बनेंगे, फ्रूट्स के अंदर सीड्स बनेंगे, सीड फॉर्मेशन को भी प्रमोट करेंगे। एंड beside this the various type of growth related movements that are happening in the plant which are known as trophic movements। तो ट्रॉफिक मूवमेंट्स जो है उनको भी ये कंट्रोल करते हैं। ओके बेटे, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रॉफिक मूवमेंट्स आर देयर? नंबर 1 फोटोट्रॉपिज्म, नंबर 2 जियोट्रॉपिज्म, नंबर 3 कीमोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म, ठीक है, थिग्मोट्रॉपिज्म, ये सारे पढ़े हुए हैं, नो प्रॉब्लम। उसके बाद देखिए अगर ग्रोथ इनहिबिटर्स हैं तो वो इनहिबिटिंग एक्टिविटीज से हमको प्रमोट करेंगे। देखो उसमें 2 टाइप की इनहिबिटिंग एक्टिविटीज आ सकती हैं, ठीक है, डोरमेंसी कॉज करती है, चाहे वो सीड की डोरमेंसी है, चाहे वो किसी के अंदर बड्स का फॉर्मेशन हो रहा है, उसको इन्होंने रोक दिया है। ठीक है, तो सीड जब काफी टाइम के लिए रेस्टिंग पीरियड में चला जाता है ना, मतलब कंडीशंस आर एडवर्स कंडीशन, तो उसको हम सीड डोरमेंसी कह सकते हैं, सीड डोरमेंसी और बड डोरमेंसी। बड निकलेगी तो सही, पर उससे आगे काम की ग्रोथ होगी, कुछ टाइम के लिए रेस्टिंग पीरियड में चली जाएगी। ठीक है, बट इट शोज रिस्पांसेस टुवर्ड्स वेरियस काइंड ऑफ biotic and abiotic stresses, shows responses towards biotic and abiotic stresses। ठीक है बेटे, biotic and abiotic stresses means कि when there is a danger in the habitat of the plant। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने abiotic stress का एग्जांपल देना होता तो मैं कहती हूँ कि प्लांट के habitat के अंदर अगर वाटर जो है उसकी डेफिशिएंसी है, then this means the stomata of that particular plant, though it is open in the daytime, पर अगर water stress is there तो stomata कैसे रहेंगे, क्लोज रहेंगे। ठीक है बेटे, क्लोज इसलिए रहेंगे क्योंकि अगर स्टोमेटा ओपन होते हैं तो उसमें से वाटर लॉस हो जाएगा। ओके बेटे, अगर वो कहते हैं कि बायोटिक स्ट्रेस की बात करते हैं तो कई बार वो कहते हैं कि प्लांट्स जो है हमें बायोटिक स्ट्रेस क्या हो सकती है, सम ऑफ द एनिमल्स दे आर ब्राउजिंग ओवर द प्लांट स्पीशीज। ठीक है, दे कैन ईट द प्लांट पार्ट्स। So what these plants do, they are producing specific type of poisonous chemicals. So when these animals they try to eat the vegetative part of the plant, those chemicals they enter into their body and the animals they kill on the spot। ठीक है बेटे, कई बार आप कोई लीफ प्लग करते हैं, आप फ्लावर प्लग करते हैं, उसमें से क्या निकलता है, लेटेक्स निकलता है, व्हाइट कलर का सब्सटेंस निकलता है, कोई गमी मटेरियल निकलता है, तो ये एक्चुअली क्या है, दीज आर द पॉइजनस सब्सटेंसेस, और ये प्लांट ने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है बनाए हुए हैं। तो व्हेनेवर एनी एनिमल और अदर स्पीशीज ही ट्राई टू मेक हार्म टू द प्लांट, तो उस केस में उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है बेटे, तो इसी तरह से कहते हैं कि कॉटन के केस में देयर इज अ डिजीज दैट इज कॉज्ड बाय कॉटन बॉलवर्म। सो दिस कॉटन बॉलवर्म इट गेट्स किल्ड व्हेन by the method of genetic engineering we have insert one specific type of, ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प से हमने क्या किया हुआ है, उस प्लांट को जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट बना दिया है। तो उसकी वजह से वो कहता है कि उसमें कुछ खास जीन्स इंसर्ट किए हैं, तो जब कॉटन बॉलवर्म उसमें डिजीज कॉज करने के लिए आता है तो वो जीन्स एक्टिव हो जाते हैं, दे प्रोड्यूस पॉइजनस केमिकल्स एंड दिस केमिकल्स एंटर इनटू द माउथ ऑफ द बॉलवर्म एंड द बॉलवर्म किल ऑन द स्पॉट। ठीक है बेटे, तो इस तरह से ये एक एडवांटेज होती है। तो ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होती हैं। तो we have two type of categories, plant growth promoters or plant growth inhibitors। okay students, any question? yes better, speak up, any question? if you have to give the example of plant growth promoters or plant growth inhibitors, ठीक है बेटे, as I have already asked one question from you, if you have to give the example of PGRs, PGPs ना, तो इसके अंदर हमारे पास कौन से आ जाएंगे, we have ऑक्सेंस। ठीक है बेटे, ऑक्सेंस या फिर हम उनको क्या कहते हैं, we call them IEA, IBA, अलग अलग तरह के हैं। सेकंड हमारे पास कौन से आ जाएंगे, these are the gibberellins, और तीसरे हमारे पास cytokinins are। So three examples of plant growth promoters: auxins, gibberellins, and cytokinins. And in plant growth inhibitors, we have two examples. कौन कौन से?
that is इथाइलिन, okay, इथाइलिन and दूसरा हमारे पास ये आ जाएगा that is एब्सिसिक एसिड. सो इथाइलिन एंड एब्सिसिक एसिड. अब बताइए इनमें से कौन सा ऐसा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है जिसका डुअल नेचर है, जो ग्रोथ प्रमोटिंग एक्टिविटीज भी शो करता है एंड ग्रोथ इनहिबिटिंग एक्टिविटीज भी शो करता है. व्हिच इज द दैट प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर? इट इज इथाइलिन. इट इज गैसियस इन नेचर. ठीक है बेटा, दोनों तरह की एक्टिविटी शो करते हैं. प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स की तरह भी बिहेव करते हैं समटाइम्स एंड समटाइम्स इट बिहेव एज प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स. बट आउट ऑफ दीस टू एक्टिविटीज the activity shown by ethylene is more towards the inhibition. तो इसलिए हमने उसको इनहिबिटर्स में रखा है. सभी बच्चे सोच रहे होंगे कि why it comes under inhibitor then, though it has a dual nature. So इसकी inhibiting activities growth promoting activities से ज्यादा है, इसलिए हमने उसको inhibitors में रखा. Okay बेटे, this is clear. Now we are starting with our next topic and that is a discovery of the plant growth regulators. ठीक है, सिर्फ मैं अभी बता रही हूँ, उसके बाद मैं फिर से इसको एक बार लूंगी. देखो, रिगार्डिंग द डिस्कवरी ऑफ ऑक्सेन्स व्हिच आर नोन एज एंडोल कंपाउंड्स. ठीक है, द साइंटिस्ट चार्ल्स डार्विन एंड हिज सन, व्हाट इज द नेम ऑफ हिज सन? फ्रांसिस डार्विन. व्हाट बोथ ऑफ दीस पीपल ऑब्जर्व, ठीक है, दे टेक देयर ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द कैनरी ग्रास. इन्होंने कैनरी ग्रास जो है उसको ऑब्जर्व किया फॉर सम डेज एंड व्हाट दे कंक्लूड दैट द शूट टिप ऑफ दिस कैनरी ग्रास, you can say the coleoptile. coleoptile क्या होता है? coleoptile is the covering of the shoot tip. ठीक है, तो उन्होंने देखा कि जो coleoptile है कैनरी ग्रास की, it shows the movement towards the source of light. ठीक है, जिस जगह से लाइट का सोर्स आ रहा था उसकी तरफ वो क्या हो जाती थी? coleoptile कैनरी ग्रास की बेंड हो जाती थी. On the basis of that, what they conclude that there may be certain specific type of stimulus that is